by interest. He has presented several papers at national and international conferences, and some of his articles have been published in the international journals of repute. He is the life member of English Language Teachers Association of India and JK Research Foundation, Chennai. Mr. Sharma has also worked as a member of the organizing committee in Great Debate, conducted by British High Commission, India. He has also been the program officer of National Services Scheme and convener of Red Ribbon Club under the banner of Rajasthan State AIDS Control Society, Jaipur. It's a very nice introduction, the details that we have about Kuldeep Sharma ji, and we are really keen, very curious to listen to you. Okay, over to you, Kuldeep sir. Thank you very much, Ubed sir. Thank you very much, and good afternoon. Please unmute you. Okay. Okay, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. So good afternoon, one and all present here. So before we proceed with the presentation with this session, I am going to show you a video for 2 minutes only. तो केवल 2 मिनट का ये वीडियो है, आप क्विकली देख लीजिए और शायद साउंड आपको नहीं आएगी तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा ट्राई टू गेट द आइडिया ऑफ द वीडियो. लेट मी शेयर. So your screen is not visible, sir. Now visible, sir. Now visible, sir. Yes, visible, sir. Visible, sir. Okay. Can you see the video? Sir, please full screen the video, sir. Okay, sir. So this was the video. Can anyone of you can tell the idea of this video? कोई भी आप में से कोई भी आपको. Yes. Sir, this is Dr. Parul Singh. Okay, ma'am. Sir, excellent synergy, coordination.
Okay. Okay. Am I audible to all? Yes, sir. Can you see my PPT? Yes, sir. Okay, thank you. So, मैम ने बताया कि कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया इसमें, यस ठीक है। सच छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद और एक बड़ा रूप लिया है उसने। तो देखते हैं, मैं छोटी छोटी कहानियों से शुरू करता हूं और कहां पर अपन पहुंच पाते हैं, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर अ सेशन बिफोर फैकल्टी मेंबर्स। स्टूडेंट्स के सामने कुछ अलग बात है और अपन कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर बात करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। सो ये पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज? कोई भी, If a person it is does two way, good deeds, it is then two he is way. considered handsome. Okay, Okay. thank you. And you imagine ourselves as your kids, okay, as your students. So generally we consider a person to be handsome if he has physical beauty, bright eyes, pointed nose, curly hair, loosey cheeks, pearly teeth, and so on. And it is a wrong conception of beauty, which is only 9 days wonder. In reality, handsome is he whose deeds are handsome. Take the example of Mahatma Gandhi, the father of nation, was not good looking. Still, he is regarded as the finest specimen of humanity because of his good conduct and character. Don't you think? So, character का बड़ा हाथ है हमें handsome बनाने में. And the same is true with our personality. तो कैसे कैसे अपन पहुंच सकते हैं वहां तक कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए? हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, हर किसी के साथ कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो शायद प्रिपरेशन इज द की, प्रिपरेशन हो सकती है कोई की इसके लिए। तो मुझे याद है एक मुरादाबाद में एक शायर ने कलाम पढ़ा, तो उसका तलस्सुफ खराब था, तलस्सुफ यानी उच्चारण। तो उसने एक बार पढ़ा एक मिसरा, तो लोगों को समझ में नहीं आया, तो ऑडियंस की तरफ से आवाज आई कि दोबारा पढ़िए। उसने दोबारा पढ़ा, फिर लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों ने कहा कि दोबारा पढ़िए, फिर लोगों ने कहा कि तीसरी बार पढ़िए। तो वो बोला परेशान होकर कि कब तक पढ़ता रहूं? तो ऑडियंस में से कोई बोला कि तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप ठीक ठीक नहीं पढ़ देते। तो मुझे लगता है कि जब तक हम ठीक ठीक नहीं कर देते तब तक इस तरह के प्रोग्राम्स की भी आवश्यकता है, और अपनी पर्सनालिटी को हमेशा डेवलप करते रहने की भी कोशिश हमें करते रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल सिनेरियो इतना फास्ट, इतना रैपिडली चेंज हो रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर 1 मिनट पे कोई नया वर्ड कॉइन हो रहा है, हर 10 मिनट पे कोई ना कोई नया मंच आपके इंतजार में हो सकता है आगे। तो देखें, कुछ बातें करें अपन। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ WH वर्ड से। सो एज सुन एज यू ओपन योर माउथ, जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं तो लोगों को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। कई बार आप देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, तो क्या उसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी? ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। केवल आपकी सुंदरता को देखकर, आपकी स्किन को देखकर, आपकी फिजिकल फिटनेस को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि आप बहुत ही हैंडसम हैं। तो कुछ स्किल्स जो हमारे अंदर होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एज वी ऑल आर टीचर्स, हम सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जब एक टीचर क्लास में एंटर करता है और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए बोर्ड की तरफ रुख करता है, तो जब वो बोर्ड के सामने जाता है तो बोर्ड पर जाते ही यदि वो क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने हैं, नरेशन पढ़ाना है, और जाते ही एक डायरेक्ट लिख दे और आपसे कहे ओके स्टूडेंट्स कैन यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, ओके नोट डाउन द डेफिनेशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लाइक दिस। इस तरह से जब टीचर्स पढ़ाना शुरू करते हैं डायरेक्टली, तो बच्चे थोड़ा सा कम कनेक्ट हो पाते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो क्यों ना शुरू में एक ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाए उनके माइंड में कि ये समझने से पहले आपको क्या बेनिफिट हो सकता है,
क्योंकि हम सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में। हमने 10th क्लास क्यों पास की? क्योंकि हमें पता था, क्योंकि हमने जो एम रख रखा है, हमारा जो लाइफ का टारगेट है, जो गोल है, वो शायद ये है कि मुझे पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। तो 10th क्लास के बाद वो सपनों की उड़ान पूरी की जा सकती है, क्योंकि 10th के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, बायो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसलिए 10th पास की। 12th क्यों पास की? क्योंकि हमें पता था कि आगे चल के 12th नहीं करेंगे तो ग्रेजुएशन नहीं होगा, ग्रेजुएशन नहीं होंगे तो जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हमेशा हमेशा रहते हैं हमारे साथ। तो क्लास में जब भी एंट्री करें और जब भी कुछ पढ़ाएं, उससे पहले ऑब्जेक्टिव शुरू के 5 मिनट में क्लियर कर दिया जाना चाहिए, तो बच्चे आपको अटेंटिव होकर सुनेंगे और ये आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा करेगा। एंड वी मस्ट नो द आंसर ऑफ ऑल द WH वर्ड्स बिफोर डिलीवरिंग एनीथिंग। ऑल द WH वर्ड्स लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर। थोड़ा मैं स्पीडी हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा 1 बजे मेरा अनदर लेक्चर है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड वे में पढ़ाऊंगा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड क्या हमारा कंटेंट है, तो आपको पता है कि आप व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास यदि थॉट्स नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा आपके फेस पर। तो थॉट्स होना बहुत जरूरी है। और थॉट्स कैसे आएगी? रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, राइट? सो आप वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर, यू मस्ट नो योर कंटेंट एंड वाई मीन्स पर्पज, जो मैंने अभी बताया। एंड हु इज योर ऑडियंस? ऑडियंस किस ऑडियंस के सामने आप डिलीवर करने जा रहे हैं? तो ऑडियंस एनालिसिस बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल इसमें बेस्ट हो सकता है। आपने देखा है कि वो जहां पर जाते हैं और उसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। अरे सुनो, मुझे ऐसा है, मेरे को BSNL से भी मिलेगा। एटलीस्ट वो पहला सेंटेंस उस लैंग्वेज में बोलते हैं जहां जिस स्टेट में वो जाते हैं। उसी तरह का वो वेयरिंग भी करते हैं, परिधान भी उसी तरह का पहन लेते हैं। जब बराक ओबामा इंडिया आए थे तो उन्होंने अपने ओरेशन की शुरुआत की थी नमस्ते कहकर, तो ये दिल को छू जाता है। तो ऑडियंस से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब भी कोई भी कवि कहीं भी जब अपने आप को कविताएं सुनाना शुरू करता है, जब ऑडियंस को किसी दूसरे स्टेट में, तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। यदि ऑडियंस आपसे शुरू के 10 मिनट्स में कनेक्ट हो गया और उसके बाद आपको 1 घंटे तक और बोलना है, तो आप ट्रस्ट मी, आप भरोसा करें मुझ पर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप थोड़ा बहुत गलत भी करते हैं ना, तो वो भी इग्नोरेबल है, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। शुरू के 10 मिनट में आपको कनेक्शन बिठाना है ऑडियंस से, और ऑडियंस जैसे कनेक्ट हो जाएगी तो फिर अपने आप आपके लिए तालियां भी बजना शुरू हो जाएंगी और लोग बाग आपको समझने लगेंगे आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है। तो ऑडियंस एनालिसिस बहुत जरूरी है। जिस तरह की ऑडियंस है उस तरह का आप एक्ट करें, राइट? एंड अवॉइड नेगेटिव टेंडेंसीज। ये बड़ा एक अच्छा मुद्दा है और हम सभी के बीच में है, ये बहुत फलता फूटता है। यदि हम वर्क प्लेस की बात करें, ऑफिस स्ट्रक्चर की बात करें, किसी प्रेमाइसिस की बात करें, तो अक्सर ये टेंडेंसी रहती है सबऑर्डिनेट्स में कि हम अपने बॉस की हमेशा बुराई करते हैं। हमारे बॉस ने ये कर दिया, हमारा बॉस बड़ा खराब है, हमारा बॉस सैलरी में हाइक के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता, हमारा बॉस ऐसे है, प्रेशर बहुत है, वर्कलोड बहुत दे रखा है। तो हमेशा नेगेटिव टेंडेंसीज रहती हैं वर्क प्लेस में, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने बॉस के प्रति। तो एक बार एक स्टोरी है जिसमें एक ऑफिस में जो भी सबऑर्डिनेट्स थे अपने बॉस की बुराई करते थे। यही कहते थे कि वो हमारा बॉस ऐसा है वैसा है और ये हमें प्रमोट नहीं करता है, फालतू के काम हमें दे देता है, ये है। तो बहुत बुराई करते थे उस बॉस की। समय निकलता गया, बॉस के सब एंटी रहते थे, ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। एक दिन न्यूज आई, बॉस कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे, तो एक दिन न्यूज आई और न्यूज में आया कि बॉस का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है, बॉस की डेथ हो गई। तो जैसे ही उसके सबऑर्डिनेट्स को ये पता चला कि हमारे बॉस अब नहीं रहे, तो कुछ लोग तो उस समय थोड़े से स्तब्ध हो गए और कुछ लोग तो बुराई करने लगे साथ में। अच्छा बढ़िया रहा, उसको उसके कर्मों का फल मिला, ठीक है ना, वो बहुत हमें परेशान करता था, ऐसा था वैसा था ये था। तो शुरुआत में जो रिएक्शन आया वो कुछ इस तरह का था। थोड़ी देर बाद रिएक्शन ये आया कि चलो जो भी था तो हमारा बॉस ही, तो एज अ ह्यूमन होने के नाते हमें कम से कम उसकी फ्यूनरल प्रोसेस में तो जाना चाहिए। तो उसकी फ्यूनरल प्रोसेस डिजाइन की गई और फ्यूनरल प्रोसेस में सभी पहुंचे।
तो सभी एक लाइन से खड़े थे। उसकी डेड बॉडी कोफिन में आई क्योंकि वो क्रिश्चियन कल्चर से था। तो ताबूत में उसकी डेड बॉडी को लाया गया, उसकी डेड बॉडी को रखा गया वहां पर, और सभी सबऑर्डिनेट से कहा गया कि आप 1 बाय 1 आइए और आप उनका अंतिम दर्शन कर लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए अपने बॉस का। तो 1 बाय 1 सभी जाने लगे। तो कॉफिन को खोला, उसकी लिड को खोला और देखा अंदर, और एंड ही गेट्स असेम्प्ट, शर्मिंदा होकर वो पीछे लौटे और साइड में खड़े हो गए। फिर दूसरे सबऑर्डिनेट को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया, सभी 1 बाय 1 देख रहे थे कॉफिन को खोलकर और शर्मिंदा होकर अपनी जगह पर वापस लौट गए, वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद बॉस अपीयर होता है। तो थोड़ी देर बाद बॉस अपीयर होता है और बॉस ने कहा कि मैं जीवित हूं, ये मैंने नाटक रचा था आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। कि क्या? उसने क्या नाटक रचा था? उसने क्या किया था कि कॉफिन में जो कॉफिन था, जो ताबूत था, उसके ऊपर मिरर लगा दिया था। जैसे ही लिड खोलेंगे तो मिरर में अपना ही चेहरा दिखेगा। तो सभी को अपना ही चेहरा दिखा, उसमें कोई डेड बॉडी नहीं दिखी किसी को। तो सभी अपने आप से ही शर्मिंदा थे, सबको कुछ ना कुछ फीलिंग आने लगी। तो बॉस ने बताया कि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपकी तरक्की तरक्की में बाधा मैं नहीं हूँ, तरक्की में बैरियर मैं नहीं हूँ, आप खुद हैं। आपकी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं। यदि आप कहीं 2,000 रुपये सैलरी पा रहे हैं और उसमें हाइक नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने शोषण का आदमी स्वयं जिम्मेदार होता है। आपने अपना स्किल डेवलप किया नहीं, हमेशा बुराइयों में लगे रहे, तो आप खुद ही अपनी परेशानी का कारण है। तो ये स्टोरी ये मोरल देती है, और आप समझ रहे होंगे कि हमें बुराइयों से बचना चाहिए। इसका मैसेज ये है। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। एंड यस, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अब ये ध्यान से सुने, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि हाउ टू स्टार्ट। सपोज करिए आप स्टेज पर कुछ कहने जा रहे हैं, या फिर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, आपको स्पीच देनी है, या आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं। आज पहला दिन है सारे स्टूडेंट्स का, और आप 1 बाय 1 खड़ा कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और उनसे कह रहे हैं कि एक पोयम सुना दीजिए। वो पोयम भी कौन सी सुनानी है? वो वाली पोयम जो उन्होंने बचपन में कई बार पढ़ी है। कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये वाली पोयम। डोंट यू फील कि आप जिस बच्चे का नाम लेते हैं या आप अनाउंस करते हैं कि अब मैं किसी ना किसी को बुलाऊंगा स्टेज पर, उसको ये पोयम सुनानी है, तो आपको नहीं लगता आपकी क्लास में क्या रिएक्शन होता है बच्चों का? बच्चों का रिएक्शन ये होता है कि आपके बच्चे जो है अपने आप को इंगेज्ड शो करने की कोशिश करते हैं, तो लिखना शुरू कर देते हैं कुछ के, जैसे वो तो इंगेज्ड है, तो सर हमें ना बुलाएं, गर्दन झुका लेते हैं। ऐसा होता है, इजंट इट? तो अब आपने किसी बच्चे का नाम ले दिया, अब क्या होगा? उसने जो इनहेल किया था, जो ब्रेथ लिया था लास्ट में, तो जैसे ही आप उसका नाम लोगे कि आप आइए स्टेज पर, तो जैसे ही वो आपने कहा सम्राट, सम्राट आप आइए स्टेज पर, तो सम्राट की जो लास्ट ब्रेथ है, जिसको वो एक्सहेल करना चाह रहा था, बाहर निकालना चाह रहा था, वो उसकी चेस्ट पर अटक जाती है। अब सम्राट अचानक से खड़ा होकर सडनली आता है भागता हुआ जल्दी से, और एकदम से बोलने की कोशिश करता है, तो टंग उसका साथ नहीं देती, जो उसको याद था वो भूल जाता है। ये सबकी लाइफ में होता है। नर्वसनेस फील करता है वो, उसके पैरों में शिवरिंग होने लग जाती है, उसके पैर शिवर करने लग जाते हैं। और ये सबके साथ प्रॉब्लम है, हम लोगों के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी। स्टेज फियर सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल थियोरेटिकल बात नहीं करूंगा इसमें कि कैसे स्टेज फियर को दूर करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आप तो फील करिए, आप इमेजिन करिए अपने सामने कि आप पोडियम के सामने खड़े हुए हैं, पोडियम के पीछे खड़े हुए हैं, सामने ऑडियंस है और आपको कुछ बोलना है, कुछ भी, वॉट एवर, राइट? अब कैसे करना है? तो आप फील करें कि लास्ट में जब आप एकदम से आते हैं और आपको कुछ बोलना होता है, तो श्वास अटकी हुई होती है अंदर, और चेहरे पर साफ दिखता है नर्वसनेस। तो जैसे ही वो श्वास आपकी बाहर निकलती है, तो आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने आप। तो क्या करेंगे आप? 30 सेकंड्स तक वेट करिए, 30 सेकंड्स तक कुछ नहीं बोलना है। स्टेज पर आकर, पोडियम पर आकर 30 सेकंड्स तक आपको कुछ भी नहीं बोलना है। अब 30 सेकंड्स तक आप कहेंगे कि सर अब तो हम ब्लंट दिखेंगे, सामने वाले कहेंगे ऐसे भूल गया क्या, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप, तो भूल गए हो क्या? तो क्या करेंगे आप?
आप लोगों को क्या करना है कि 30 सेकंड्स जैसे आप खड़े हुए तो आपको कुछ ना कुछ एक्ट करना है, अपने आप को थोड़ा सा वहां पर एक्सपर्ट शो करने की कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल वो किस तरह से करेंगे, जैसे पोडियम, सपोज करिए पोडियम रखा हुआ है, सपोज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार पोडियम मिलेगा आपको। तो पोडियम अपनी सही पोजीशन पर है, बिल्कुल अच्छी तरह से रखा हुआ है। आप क्या करेंगे, जैसे ही वहां पहुंचे पोडियम पर, अपनी फाइल रखिए पोडियम के ऊपर, जो भी फाइल डॉक्यूमेंट आपके पास है, और पोडियम को हल्का सा टिल्ट करिए अपनी जगह से, हल्का सा थोड़ा सा डिग्री पर घुमा दीजिए, फिर उसको सेम पोजीशन पर ले आइए। ये एक्ट केवल इसलिए है कि वो जो 30 सेकंड्स का शुरू का टाइम जो आपको निकालना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो श्वास अटकी हुई है उसको बाहर निकालना है, सबसे पहला काम। तो आपने टिल्ट किया, उसको वापस लेकर आए, 30 सेकंड से ज्यादा श्वास रहेगी नहीं अंदर। फिर आपके पोडियम पर सपोज कीजिए कि माइक रखा हुआ है, तो थोड़ा सा अपनी वॉइस का टेस्ट भी कर लो, आप चेक कर लीजिए, 1 2 3, हेलो हेलो हेलो, चेक, हेलो, इस तरह से। अब आपकी श्वास बिल्कुल रिलीज हो चुकी है। अब आप 10% आपका डर कम हो चुका है, 10% मान के चलिए, 10% कम हो गया। अब आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ बोलना है, शुरुआत करनी है, तो आप एक वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी वीडियो लेकर आए, बट ट्राई टू कनेक्ट द मोरल ऑफ दैट वीडियो, द इन्फेरेंस ऑफ दैट वीडियो टू योर टॉपिक। अपने टॉपिक से जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार लेकर आने वाली बात है। पर्सनैलिटी उसी से पता चलती है कि आप बोलते कैसे हैं। सो इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से दैट। कैसे आप कह पा रहे हैं, ये बात मैंने, ये बात रखती है। व्हाट आप क्या कहते हैं, इसको तो लोग अब भूल जाते हैं, 15 मिनट के बाद सभी भूल जाएंगे कि क्या कहा। स्टाइल्स हमेशा याद रहती हैं, स्टाइल्स को फॉलो किया जाता है। किसी मूवी में किसी हीरो का हेयर स्टाइल क्या था, उसको हमेशा फॉलो किया जाता है, राइट। तो आपकी अभी श्वास निकली है, अभी पैर शिवर कर रहे हैं, अपने पैरों में वाइब्रेशन है, पैर में शिवरिंग कम नहीं हुई है। तो जब तक वो वीडियो चल रहा है, आप ऑडियंस की तरफ थोड़ा सा वॉक डाउन हो लीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, सबके चेहरे को नाप लीजिए, समझ लीजिए कि कौन क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह का चेहरा है। थोड़ा सा फैमिलियर होने की कोशिश करिए, बस चलते रहिए, वीडियो चल रहा है, आपको बोलना नहीं है किसी से, किसी को टच नहीं करना है, आपको जस्ट बस 2 मिनट का समय वहां पर भी पास करना है। और इससे क्या होगा, थोड़ा सा पैरों में शिवरिंग आपकी कम हो जाएगी, थोड़ी सी, ठीक है। आप कम से कम 50% रिलैक्स फील करेंगे आप। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सर हमारे पास तो कोई वीडियो नहीं है इस तरह से शो करने के लिए, तो हम क्या करें। यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन और योर स्पीच विद एनी एग्जाम्पल, विद एनी फैक्ट। किसी फैक्ट को आप रेज कर सकते हैं, आप कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और अपने ऑडियंस को आंसर के लिए वेट नहीं कराना है, ध्यान से सुनिए। आप किसी की तरफ फिंगर पॉइंट भी ना करें, यस शर्मा जी आप बताइए, वर्मा जी आप बताइए, ना ना बिल्कुल नहीं। 30 सेकंड्स तक का वेट दीजिए, और वो नहीं कोई आंसर देता है तो आप खुद आंसर दे दीजिए। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो कोई फैक्ट नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है, कोई और तरीका बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कोई स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं, कोई स्टोरी बता सकते हैं, और ट्राई टू कनेक्ट द मोरल ऑफ द स्टोरी विद योर टॉपिक टू। ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। स्टोरी कोई भी हो सकती है, हेयर एंड टॉर्टोस की स्टोरी भी हो सकती है, बट ये आपके कहने का तरीका है कि आप उसको किस तरह से सामने वालों को सर्व कर पाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमारे पास ना वीडियो है, ना स्टोरी है, ना फैक्ट है, ना फिगर है, कुछ नहीं है, आप तो कुछ और बताइए। तो मैं कहूंगा सपोज आप पीपीटी दे रहे हैं तो 3-4 स्लाइड एक्स्ट्रा बनाकर लेकर जाइए, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखिए, पीछे बैकग्राउंड साउंड होनी चाहिए, और आप लगातार चलाते जाइए। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि भारत में 3 मिनट में कितने लोग आत्महत्या करते हैं? डिड यू नो, 1 मिनट में कितनी तालियां बजती हैं? कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग, तो लोग वाग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऑडियंस क्या करती है जनरली, ऑडियंस का ध्यान कहीं दूसरी तरफ रहता है, कोई अंकल चिप्स खा रहा है, कोई किसी के शोल्डर पर सर रखकर सो रहा है, ठीक है ना। ऑडियंस शुरुआत में थोड़ा सा बोर्डम भी फील करती है, तो उसको ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस है, और आप में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये बातें मैंने कही है। तो कॉन्फिडेंस एक बार आ गया तो फिर आप बोलना शुरू कर देंगे, फिर कोई रोकने वाला नहीं है, और लोग आपको सुनेंगे। कनेक्शन बैठाना है, ठीक है। शुरुआत में बिल्कुल मत बोलिए गुड मॉर्निंग सर, आई एम दिस एंड दिस, लेट द पीपल एक्सप्लोर हु यू आर, राइट। तो ये यू कैन स्टार्ट, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने स्टेज फियर पर आप ओवरकम आ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने स्पीडी बताया है, चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। यस, प्रेज अदर्स, ये भी एक तरह का वर्च्यू है, प्रेज अदर्स, और गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। दूसरों की तारीफ करें, आप तारीफ करेंगे तो
आपके काम आसानी से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोचिंग में पढ़ाता था और मेरे जस्ट ऊपर एक वर्मा जी की कोचिंग चलती थी। जून का महीना था, उस समय बहुत गर्मी थी, तो मैं पढ़ा रहा था, बैच चल रहा था और गर्मी का समय था। अचानक से हमारा जो फ्यूज है, जो कटआउट जो लगा हुआ होता है मीटर के पास, वो खराब हो जाता है, उड़ जाता है, जल जाता है। तो जैसे ही जल जाता है, लाइट चली जाती है, बच्चे गर्मी के हमारे परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो एक लड़का मैंने रख रखा था छोटे मोटे काम करने के लिए। तो मैंने उस लड़के से कहा कि देखो कि क्या हुआ है बाहर, लाइट कैसे चली गई। तो वो क्या करता है, वहां जाता है फ्यूज पर और वो देखता है, तो वो हमारा फ्यूज जल चुका था, उड़ चुका था। वो क्या करता है कि ऊपर जो वर्मा जी की कोचिंग चलती थी, तो उनका जो कटआउट लगा था, उनका फ्यूज, उसको निकाल के हमारे वाले में लगा देता है। अब हमारी लाइट आ जाती है और चली किसकी जाती है, किसकी चली जाती है बताएंगे कोई? एक बार अनम्यूट होकर। वर्मा जी सर की। वर्मा जी की लाइट चली जाती है। वर्मा जी की। यस यस, थैंक यू। सो वर्मा जी की लाइट चली जाती है। अब वर्मा जी परेशान, किसी ने उस लड़के को ऐसा करते हुए देख लिया वर्मा जी की तरफ से। अब वर्मा जी को बताया कि ऐसे शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी की के लड़के ने ऐसा कर दिया। अब वर्मा जी गुस्सा होते हुए, मैं नीचे खड़ा था और वो डाउन स्टेयर आ रहे हैं, चिल्लाते हुए आ रहे हैं, और ये क्या तरीका है, और ये है, ऐसा है, वैसा है। आप सुनिए, अब मुझे माजरा समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ अब गड़बड़ है और फालतू में लड़ाई हो सकती है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो बस सीढ़ियों से उतर रहे थे और लड़का मेरे सामने खड़ा था और इधर मैं खड़ा था, वर्मा जी गुस्से में थे, ठीक। मैंने क्या किया, अपने पॉकेट में हाथ डाला, अपना पर्स निकाला, और पर्स निकालते निकालते मैंने लड़के की तरफ निगाह करते हुए बोला, तुम जानते हो ये कौन है? ये वर्मा जी हैं, और इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं पूरे समाज में, इतने आदरणीय हैं, पता है दूर दूर से बच्चे इन पर पढ़ने आते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व आजकल देखने को नहीं मिल रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ पास होते हुए भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। हाँ, बहुत गलत बात है ये। चलो लो, ये 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, कटआउट लेकर आओ, तुरंत लगाओ। बस इतना मैंने वर्मा जी का तारीफ किया। थोड़ी सी और भी तारीफ की थी, वो मैं अभी यहाँ आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो जो तारीफ की, तो वर्मा जी काम डाउन हो गए धीरे धीरे, जैसे जैसे तारीफ के सेंटेंस निकलते गए और वो काम डाउन होते गए। लास्ट स्टेयर तक पहुंचते हुए, यू कांट बिलीव, उन्होंने अपना पर्स निकाला, मेरा हाथ रोका, अरे नहीं नहीं नहीं, आप मत दीजिए, आप मत दीजिए। उन्होंने खुद 100 का नोट निकाला और उस लड़के को दिया और उसको कहा ठीक है। तो ये सबकी लाइफ में होती है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ऐसी बात हुई। तो जो एक लड़का मेरी गाड़ी साफ करता था, तो सुबह शाम पार्ट टाइम रख रखा था, तो वो कभी कभी गाड़ी साफ करने आता था। तो यदि मैं सामने बैठा रहूं तो वो गाड़ी बड़ी अच्छी साफ करता था, एक एक जगह को चेक करके। लेकिन जैसे ही मेरी निगाह चूक जाए या मैं कहीं दूसरे काम में एंगेज हो जाऊं, तो वो क्या करता था, कोई ना कोई एरिया को छोड़ देता था, वो ढंग से सफाई नहीं करता था। अपने यहाँ ऐसा है, जो कुछ मजदूर लोग हैं, आप सामने बैठते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं, आप हट जाते हैं तो थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं, ऐसा देखने में आया है। तो एक मेरे फ्रेंड आए मेरी कोचिंग पर और सामने बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा, यार मुझे गाड़ी साफ करने वाला चाहिए। तो मैंने उनको बताया, अच्छा अपने पास है लड़का, ये आप पार्ट टाइम इसको रख सकते हैं, ये गाड़ी साफ करने के लिए आ सकता है, और इतना अच्छा लड़का है, इतने बढ़िया गाड़ी साफ करता है कि आप एक एक मिट्टी का, एक डस्ट का दाना आप ढूंढ के बता दो, इसकी गाड़ी साफ करने की ऐसा स्किल है इस बच्चे में, ऐसे साफ करता है। अब वो लड़का सामने खड़ा था, सुन रहा था मेरी बात, और मैं उसकी ऐसे तारीफ कर रहा था, और यू वोंट बिलीव कि अगली बार से अब मुझे देखने की जरूरत नहीं थी और वो अच्छी तरह से गाड़ी साफ करने लगा। यानी आप जब प्रेज करते हैं किसी को तो आदमी मोटिवेट होता है, और आप उसको नेगेटिव वे में कहें, अरे यार तू तो ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, तो वो मन में गुस्सा भी होगा, आपको बुरा भला भी कहेगा और काम भी ढंग से नहीं करेगा। तो ये चीजें अपनी पर्सनैलिटी में आप आढ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज एसेंशियल। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मैं बता रहा था कि सभी यूनिक हैं अपने आप में और सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। आपने नाम सुना होगा निकोलो का। 1880 की बात है, 1880 सन 1880 की बात है। तो एक निकोलो नाम के व्यक्ति थे जो कि फेमस वायलिनिस्ट थे, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो। वायलिनिस्ट यानी वायलिन बजाते थे, बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, उनका नाम था उस समय हिस्ट्री में, 1880 की बात है। तो उनका एक परफॉर्मेंस होना था स्टेज पर, तो स्टेज पर वो परफॉर्म करने के लिए जाने ही वाले थे, और लास्ट मोमेंट पर मैं वो अपना वायलिन ढूंढने लगे, उनको अपना वायलिन नहीं मिला, वो काफी परेशान थे। 15 मिनट बची हुई थी स्टेज परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले। जो ऑर्गेनाइजर था उस प्रोग्राम का, वो दौड़ता हुआ निकोलो के पास आया बैक स्टेज, कि भाई निकोलो आप क्यों नहीं आए अभी तक, अभी आइए जल्दी, प्रोग्राम शुरू होने वाला है।
निकोलो बहुत परेशान थे, उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था और बहुत हेजिटेंट फील कर रहे थे, काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। और 15 मिनट जैसे ही उन्होंने सुना तो वो भागकर कहीं जाते हैं अपने रूम की तरफ और फिर कुछ ढूंढते हैं और फिर कुछ लेकर आते हैं। और फिर 5 मिनट बचते हैं अभी प्रोग्राम को, ऑर्गेनाइजर दोबारा निकोलो के पास जाता है कि निकोलो क्या हुआ, आपकी फैन फॉलोइंग आपका इंतजार कर रही है, आपको परफॉर्मेंस देनी है, स्टेज का टाइम शुरू होने वाला है। निकोलो अब भी परेशान थे, लेकिन उनके हाथ में एक वायलिन थी और एट लास्ट वो स्टेज पर आने के लिए रेडी हो गए और स्टेज पर आते हैं और अपना प्रोग्राम देते हैं। प्रोग्राम बहुत शानदार जाता है, बहुत एप्लॉज मिलता है उनको, ऑडियंस उनको बहुत अप्रिशिएट करती है, शानदार उनका मास्टर प्रोग्राम रहता है ये वाला प्रोग्राम। जब ये प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजर निकोलो के पास दोबारा जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब मैं आपको बुलाने आया था 15 मिनट पहले तो आप बहुत परेशान थे, हताश थे, निराश थे, क्या 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 रीजन था इसके पीछे, और आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा गया, क्या कारण था? तो निकोलो ने बताया कि मैं उस वायलिन को ढूंढ नहीं पा रहा था, मुझसे वो मिस हो गई थी, पता नहीं मैंने वो वायलिन कहाँ रख दी, जो कि मेरी लकी चार्म हुआ करती थी। आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं तो कुछ बैट्स, उनके पास कई सारे बैट्स होते हैं, लेकिन कुछ बैट्स को वो संभाल कर रखते हैं कि जिनसे उन्होंने सेंचुरी दी होती है। तो मैं उस वायलिन को ढूंढ रहा था, काश वो वायलिन मुझे मिल जाती तो मैं प्रोग्राम अच्छा कर पाता। प्रोग्राम तो अच्छा ही हुआ था, लेकिन वो वायलिन मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे ये टेंशन थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा प्रोग्राम बिगड़ जाए और मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ। और वो वायलिन उसको मिली नहीं थी, उसने किसी और वायलिन से प्रोग्राम दिया। तो क्या समझ में आता है आपको, क्या इससे लगता है आपको, इस स्टोरी का क्या मोरल हो सकता है? कोई भी आप में से एक बताइए, कोई भी, कोई भी। कि इट इज इन द इंस्ट्रूमेंट और इट इज विद इन। It is indeed within. यस, ये आपके अंदर है, जो भी आपका टैलेंट है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता। वायलिन बजाने की उंगलियां तो आपकी हैं, तो फन किसमें है? आप में है। इंस्ट्रूमेंट को तो आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा, वो तो जस्ट एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है, किसी भी बाहरी परिधान के पीछे ना भागें। हम लोग हमेशा अपने फिजिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके प्रति इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो इंटरनल स्किल्स हैं उनके लिए हम भूल जाएं। इंटरनल स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते रहेंगे, ये फिजिकल जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो आप कभी भी कहीं भी ले सकते हैं, बट जो इंटरनल आप एक बार छोड़ देंगे तो आगे आपको बड़ी प्रॉब्लम फील हो सकती है आगे बढ़ने में। यस, वॉइस मॉड्यूलेशन पर थोड़ा सा बात कर लें। वैसे मैम ने लास्ट में मैम बोल रही थी तो उन्होंने बताया वॉइस मॉड्यूलेशन पिच के बारे में। तो जब भी आप कुछ भी स्पीच दे रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वॉइस को मॉड्यूलेट करना बहुत जरूरी है। आप यदि सेम पिच पर बोलेंगे मोनोटोनस लगेगा। आपने देखा होगा जब एक सिंगर अपना गाना गाता है तो शुरू में उसकी पिच रेज होती है और लास्ट में पिच उसकी डाउन होती है। जैसे ही उसकी पिच डाउन होती है हमें फील होता है कि अब ये गाना खत्म हो चुका है, अब हमें ताली बजा देनी चाहिए, या फिर वो सिंगर कहता है अब गाना खत्म हो चुका है, आप ताली बजा सकते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें खुद ही फीलिंग आ जाती है कुछ उसकी पिच की वजह से, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन की वजह से, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने गाया तो शुरू में पिच रेज होती है किसी भी गाने की, जन गण मन, तो अपन रेज करते हैं पिच को। लास्ट में जब डाउन पर लेकर जाते हैं तो जय हे जय हे जय जय हे, तो अपन ऐसे बिल्कुल डाउन पर आए तो फीलिंग ऐसी आती है ऑडियंस को कि वो ताली बजाए। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, तभी हमें गाना भी अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं वो अभी लास्ट का एग्जांपल दे रहा था स्टेज फियर वाला, उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो कॉन्सर्ट होते हैं, कॉन्सर्ट जिसमें एक पूरी टीम आती है, जिसमें एक ढोलक बजाने वाला होता है, तबला बजाने वाला होता है, एक हारमोनियम पर होता है जो कि सिंगर भी होता है। तो आपने देखा होगा कि ये लोग टाइम लेते हैं, ये डायरेक्ट स्टेज पर आकर बोलना शुरू कर देते हैं क्या, सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं क्या? कभी नहीं करते। 15 से 30 मिनट का टाइम लेते हैं ये अपने आप को सेट होने के लिए, क्योंकि जब हम चलकर आते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और आप अचानक से फिर एकदम से स्टेज पर आकर बोलना शुरू करेंगे तो आपकी टंग आपका साथ नहीं देगी, ये निश्चित है। तो आपको
रूम क्लाइमेट पर आना बहुत जरूरी है, रूम टेम्परेचर पर आना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि जो ढोलक पर व्यक्ति है कॉन्सर्ट में, तो वो क्या करता है, शुरू में क्या करता है, पहले एक थपकी देगा ढोलक पर, और उसको साउंड अच्छी नहीं लगेगी तो वो सामने वाले जो साउंड सिस्टम पर बैठे हैं, जो टेक्नीशियंस बैठे हैं, तो उनको कहेगा इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, ठीक है, और फिर वो वॉल्यूम बढ़ाएंगे। फिर आपने देखा होगा ढोलक पर एक लॉक लगा रहता है, छल्ला टाइप, और दो रस्सियां बनी हुई होती हैं, तो उसको वो नीचे लाएगा, फिर उसके बाद उसको ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि रस्सियां तो ठीक थी, आपको लगता है कि वो घर से ठीक नहीं करके लाया होगा, वो तो ठीक था, पर ये थोड़ा सा टाइम निकालने का एक तरीका है। जो जो हारमोनियम पर हैं, जिनको गाना भी गाना है, तो वो शुरू में गाने की कोशिश करते हैं, शुरू में गले को भी गिगल करते हैं, गिगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक तो इस तरह से, यानी थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, यानी कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। तो वो जैसे जैसे टाइम पास होता है कॉन्फिडेंस आता है, और अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है वहां पर। तो ठीक है, मैं समझता हूँ ये यहाँ तक ठीक है। अब मेरे पास एक दो पॉइंट और हैं और फिर सम अप करेंगे। यस, स्पीकिंग टू फास्ट। आज थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। तो स्पीकिंग टू फास्ट, तो बहुत जल्दी नहीं बोलना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्पो, TEMPO। तो टेम्पो, कई बार हम बहुत स्पीड से बोलते हैं, ठीक है, कई बार लोग वक्त सुन नहीं पाते उसको ढंग से। और आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत स्लो भी बोलते हैं, तो ना तो बहुत स्लो रहिए ना बहुत फास्ट रहिए। पहले जब रामायण और महाभारत चलती थी, तो जब हम देखते थे, तो उनमें डायलॉग जो डिलीवरी थी, डायलॉग डिलीवरी वो बहुत स्लो थी, धीमे धीमे कैरेक्टर्स बोलते थे, बहुत धीमे धीमे, स्लो स्लो। तो वो तो चूंकि अपने भगवान के नाटक थे और वो बहुत अच्छा डायलॉग्स रहते थे, तो हमें अच्छे लगते थे। लेकिन आज के समय में इतना धीमा कोई बोले तो कोई इरिटेट होगा कि नहीं होगा? होगा। सीते, अब मैं वन से वापस आ चुका हूं, क्या भोजन मिलेगा सीते? प्रणाम प्रभु, मैं अभी जाती हूँ और भोजन पका कर लाती हूँ, प्रभु आज्ञा दें। बताओ, अब आज इस तरह से अपन बात करें तो नहीं चल पाएगा, तो इतना स्लो अपन नहीं बोल सकते, तो बहुत इरिटेशन फील हो सकती है। और तेज ना बोलें। यूजिंग जार्गन्स, जार्गन्स क्या होते हैं? थोड़े से कन्वेंशनल वर्ड हैं जिनको आजकल हम स्पोकन में यूज करने लगे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे या अपन इंग्लिश बोलते हैं तो कई लोग आपने देखा होगा सामने वाला या, थोड़ा सा अवॉइड करें इस तरह के वर्ड्स को। ओके 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 ओके, ऑल राइट कह सकते हैं इनकी जगह पर आप। आजकल कुछ सेंटेंस के बाद हिंदी के वर्ड भी पॉपुलर हो गए हैं। कुछ जैसे कुछ गर्ल्स, जैसे मान लो कोई सेंटेंस बोल रही हैं, तो आजकल हिंदी का भी एक कोई ना कोई वर्ड उसके साथ में लगा देती हैं। अब मैं पूरी गर्ल्स कम्युनिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात है, तो उसको उस तरह से ना देखें। आई टोल्ड यू ना, आई टोल्ड यू ना, ऐसे। तो इंग्लिश बोला, उसके बाद एक हिंदी का सेंटेंस, तो कोशिश करें कि ये अवॉइड किया जा सके थोड़ा सा। और यस, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इफ समबडी आस्क एनी क्वेश्चन टू यू। सपोज कीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्लासरूम में भी आप टीचर हैं और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से नहीं आता, आता है बट अच्छी तरह से नहीं आता है, तो डोंट ट्राई टू ब्लफ। ब्लफ करने की कोशिश ना करें, सामने वाले को गुमराह करने की कोशिश ना करें, और खुद भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप सीधा सॉरी बोल सकते हैं, बहुत हम्बल वे में, हल्का सा टिल्ट हुई उसकी तरफ और हम्बल वे में कह दीजिए, थैंक यू वेरी मच सर फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन, एंड टुडे टुमारो आई विल कंसल्ट दिस क्वेश्चन टू माय सीनियर एंड डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी, और अभी के लिए मैं सॉरी फील करता हूँ या करती हूँ। बस इतना प्यार से आप बोल दीजिए। बताओ सामने वाला गुस्सा होगा या अप्रिशिएट करेगा? आपको अप्रिशिएट करेगा, और आप कह देंगे अरे अरे ये क्या क्वेश्चन है, ऐसे कोई पूछता है क्या, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑलवेज प्रिपेयर, चैनलाइज योर फियर एंड इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस, जनरेट reading habits. So this is all about my presentation. If you have any question, you can ask. If anybody is willing to ask something, you can. Will, are there any queries? Yes.
Well, it was a very nice presentation, very lively. Mr. Sharma talked about how to overcome stage fear, how to present ourselves before students and make our students confident while delivering PowerPoint or general presentation, and at the time in interview, like how should we prepare ourselves for interview. अक्सर क्या देखा जाता है कि okay, this is fine. Okay, thank you so much. Because it is better to get assured whether you are being heard or not. This is there. That's why I was just making myself assured that I am listened to, I am heard or not. He told me that I am audible. Yes, आपने बहुत खूबसूरत presentation दिया और बहुत अच्छी बातें की. जैसे ही हम यानी आए कहीं से चल के तो फौरन ही हमें जो है स्टेज फियर नहीं शुरू कर देना. स्टेज फियर की वजह से हम क्या करते हैं कि हम लड़खाने लगते हैं या फिर हमसे हकलाने लगते हैं, बात हमसे ठीक से नहीं होती है. तो पहले से थोड़ा सोचें, रुकें और फिर जब आप एकदम चैन सुकून हो जाए, आपकी सांस जो है ठहर जाए, तब आप बात करना शुरू करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे आपने रोशनी डाली और कई चीज़ों पे आपने रोशनी डाली. वैसे जैसे मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी कि ये जो तारीफ करना है ये एक खूबी है, एक ये जो है एक मैं कहूँ एक ये गिफ्टेड जो है टैलेंट है जो कि हमें डेवलप करना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि तारीफ भी हर कोई नहीं करता है. अगर आप तारीफ करना जानते हैं तो इसके मतलब आपकी शख्सियत में एक पॉजिटिविटी है, आपके व्यक्तित्व में एक जो है सकारात्मकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है. और सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है. He talked about significance of voice modulation. That's very important. आवाज़ में अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो फिर वो जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम अगर फ्लैट टोन में बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बोरियत वाली गुफ्तगू हो जाती है. इंग्लिश में तो हम इंटोनेशन होता है हमारे यहाँ, राइज एंड फॉल ऑफ पिच, जो कि बहुत जरूरी है. इंग्लिश इज एन एक्सेंटेड लैंग्वेज, हिंदी इज अ फ्लैट लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन एक्सेंटेड लैंग्वेज वेयर दिस मॉड्यूलेशन ऑफ पिच इज वेरी एसेंशियल, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट. So he talked about intonation, he talked about accent. That's very important. And some people speak too fast or too slow. Speaking too fast or too slow is also not good. We should speak at a perfect pace. Okay, and I really like that he enacted even how people speak slowly, like I think that was from some Katha Vachan and all, was from some soap opera. He was citing examples like there are people who spoke slow, very slow, like in the old black movies, which soon followed the silent movies. There the actors spoke very slowly. So now when the young generation listens to or watches that movie, they find that very funny. And one should not speak very fast also. So stage fear की जो बातें हैं जो आपने बताई वो बहुत ही अच्छी थी, और हर किसी को जो है बोलना की जरूरत आती है, क्योंकि बिना बोले बात नहीं चलती है. तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे इसलिए जो है हम सब लोग अपने विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं. अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे विचार रखें, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, इसके बारे में आपने बात की. और बहुत ही आपका अपीलिंग प्रेजेंटेशन था. आपके जो पीपीडीज थी वो बहुत अच्छी थी, और जो पहले आपका एक जो म्यूट प्रेजेंटेशन था दैट वाज आल्सो रिमार्केबल. थैंक यू सो मच. कुलदीप शर्मा जी, Thank you so much, sir, for giving me the thank you privilege. so much. Now, are there any queries? Participants, if you have any queries, please do ask Mr. Sharma. He's available with us. Okay, that means there are no queries. Okay, and thank you Thank you so so much, Faruqi sir, and thank you Vidwan sir and entire team of BSR Government Arts College. Thank you so much. वैसे मैं आपसे दरखास्त करूंगा कुलदीप शर्मा सर कि कभी आप आके ये भी बताएं कि हमें क्या खामियां हैं, हमें किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि आपका तो ये प्रोफेशन है इनफैक्ट, एंड आपका ये फोर्टे भी है. So Yes, we would just we would appreciate it if you could tell us how to make our communication better, even better. जरूर सर, बट आप बहुत अच्छे लोग कम्युनिकेटर जो हैं है फारूकी टीचर्स सर. हैं, तो टीचर्स they always have a room for improvement. Right. Thank you sir. Thank you guys. Okay. अच्छा, अब बात करते हैं कल के रिपोर्ट्स
के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि पार्टिसिपेंट्स वॉलंटियर करें। आज हमारे 3 टेक्निकल सेशंस थे जी। Hello, sir. Hello, sir. Myself, Rajeshwari Devi Rathor, Government Girls College, Chomu. Rajeshwari Devi Rathor. Please make a note of it. Sir, I would like to present the reports on the first session. The Dr. Dr. Renu Rajesh, active listening skills. Okay, thank you. Okay, second person who would like to present report on Dr. Veena Jain's presentation. Please volunteer yourself. We appreciate that if you do it yourself. Is there any participant who would like to volunteer to read out report on Dr. Veena Jain's presentation? Dr. Savita Vadia, is she around? Savita ji, are you around? Yes. Okay, because I'm sorry, like the name is familiar, and we have met also. We have done a refresher course Yeah. together. That's why, Yes, that's right. please. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Okay, Savita ji would be reading out report on Dr. Veena's presentation. Okay. Thank you, Savita ji. Thank you, sir. Thank you. And yes, we want somebody to read report on Dr. Kuldeep Sharma's presentation too. Yeah. Bhagwanti ji is connected, I think. Bhagwanti ji, would you like to? Are you around? Yes, sir. Would you please Yes, sir. present report? Okay, sir. Thank you so much. You're so kind and so cooperative also. I really appreciate that. Okay, thank Thank you. you Sir. so much. Bhagwanti ji would present her report on Dr. Kuldeep. Okay. Was I heard or not? Okay. Thank you. Now you may log out your participants. Thank you so much. Wish you all a great day.